दिनेश सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। ठीक, चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. In the last lecture we discussed about the solar radiation, heat balance and temperature factors affecting temperature. ये सारा जो है हमने डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसोलेशन अमाउंट को यानी टेम्परेचर को जो है वो इफेक्ट करते हैं यानी उसको डिटरमिन करते हैं. टेम्परेचर और इंसोलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसोलेशन एंड टेम्परेचर? Yes, Insolation is heat energy which give heat to the earth. But temperature is a thing which tells in Celsius. Which tells us the intensity of the heat. Intensity. Yes. And second, yes, Aryan. Insulation is measured by colors. Insulation is measured by calories. Yes. And temperature, the unit of measuring temperature is Celsius and Fahrenheit, है ना? And the third difference between the two, Isolation is a cause. not isolation, insulation. Yes, insulation is the cause while the temperature is its effect. तो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं? We already discussed, in which we discussed the latitudes, है ना? As we go far from the equator, the temperature decreases. है ना? Second हमने किया था altitude. As we go above the sea level, the temperature decreases. Third हमने किया था distance from the coastal areas experiences moderate climate, while we go far from the coastal areas the temperature ranges increases. And the last fourth question currents. Question currents where ocean currents flows the temperature increases, while the cold ocean currents makes the temperature decreases. So that area experiences low temperature while they are situated cold जो है इक्वेटर के पास के टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, कम करते हैं. Next was the winds. Prevailing winds means some winds are known as the local winds because they blow for the shorter times means for the month or fortnightly in places. They blow from the some regions. ये कहाँ पर होती है? ये सिर्फ कुछ रीजन में ब्लो होती है. These are called local winds. So these local winds, where the warm winds blow, they will increase the temperature while the cold winds will decrease the temperature. Next था हमारा aspects of slope. The southern slope in the northern hemisphere receives the maximum amount of insolation. So the temperature is increased at the southern slope of the hills in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere it is vice versa. इसका reverse. Clear? Next आता है हमारा इसमें nature of land surface. Nature of land surface हमारा किस तरीके का land surface है? Nature of land surface. Earth's crust is not uniform और relief is not uniform. कि जो हमारा धरातल है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, हमें उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है. कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर आइस कवर्ड एरिया है, कहीं फॉरेस्टेड एरिया है. अब क्या होगा, जो हमारा आइस कवर्ड एरिया है दैट रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन. हमने हीट बैलेंस में किया था कि जो आइस कवर्ड एरिया है वो सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करता, क्योंकि आइस क्या है, हमारी सॉलिड है.
उससे जैसे ही रे वो बैक स्पेस में चली जाती है, उसका कुछ ही अमाउंट जो है वो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है। तो जो आइस कवर्ड एरियाज है वहां पर हमें टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारे फॉरेस्टेड कवर्ड एरियाज हैं, फॉरेस्टेड कवर्ड एरियाज जो हैं दे विल रिसीव अ लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज द ट्रीज विल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। अब जैसे आप गर्मियों में निकलते हो बाहर, हमारे यहाँ पर समर आता है तो आप बाहर निकलते हो, आप रोड साइड पर जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, अगर वहां ट्रीज लगे हुए हैं तो आप सोचोगे उसके नीचे नीचे चले हम, है ना, जबकि सोलर अमाउंट तो एक जैसा ही आ रहा है ना, ऊपर से उस रोड पे सारी जगह एक जैसा आ रहा है, लेकिन आप जो है रोड साइड पर चलना पसंद करोगे जहां ट्रीज लगे, क्योंकि जहां ट्रीज है वो क्या करेंगे, ट्री का जो कवर है वो क्या कर देता है, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है और लेस अमाउंट ऑफ हीट विल बी रीच्ड at the surface of the land. Clear? चलिए, ऐसे ही हमारा clouds and rainfalls. Clouds and rainfall, the cloudy areas where the rainfall amount is high, they will reach the less amount of temperature. As for example, equator. इक्वेटर पे हम कहते हैं कि वहां पर हमारे दो फैक्टर काम करते हैं। देखो, एक तो हमारी सनराइज सीधी आती है, इसका मतलब वहां इंसुलेशन ज्यादा होना चाहिए था। दूसरा, वहां डे एंड नाइट का जो है वो इक्वल है, 12 आवर्स की डेज और 12 आवर्स का हमारा नाइट है, ठीक। तो इसका मतलब वहां इंसुलेशन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उस हीट को बैलेंस कौन करता है, उसके वहां पर क्लाउड्स, वहां पर क्लाउड्स फॉर्मेशन रहती है, ऑलमोस्ट सारा दिन, हर दिन जो है बारिश होती है। अब क्लाउड्स का हमने पढ़ा था, क्या था कि जो क्लाउड्स है दैट absorbs the insolation, है ना, and the less amount of heat will be reached at the surface of the earth. तो जैसे कि हमारा राजस्थान जैसा या डेजर्टेड एरिया है, वो दैट इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड, वहां पर क्लाउड नहीं है, बिल्कुल खाली एरिया है, तो वहां पर स्काई है, क्लियर है, क्लियर स्काई होने के कारण दे रिसीव द हाई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इन विंटर्स, ठीक है। डे टाइम में वहां पर गर्मी होती है, विंटर्स में भी, क्यों, क्योंकि विंटर्स में भी बिल्कुल क्लाउड तो है ही नहीं, तो क्लियरली स्काई होने के कारण क्या हो रहा है, इंसुलेशन ज्यादा आ रहा है। क्लियर हुए ये पॉइंट्स? नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को जब हम मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ आइसोथर्म्स, by the lines of isotherms. Horizontal distribution of temperature. हॉरिजॉन्टल की जब हम बात करते हैं, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब along with the surface, ठीक है, कि जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। वर्टिकल का मतलब हाइट, अप डाउन, ठीक। अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो इट मींस यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्म्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आइसोथर्म्स होता क्या है। Isotherms are the imaginary lines which are drawn on a map and they join the almost having equal temperature. अब देखो क्या, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके बाद हमारे ये लैटिट्यूड स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अभी हमने सारा चैप्टर में किया कि जो इंसुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम लैटिट्यूड, है ना, सेम लैटिट्यूड यानी डिग्री पर ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस जो है इक्वल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव करेंगे, लेकिन उसमें वेरिएशन किस वजह से आता है, जो अभी हमने फैक्टर पढ़े थे, है ना, ओशंस के कारण, लैंड सरफेस के कारण, ठीक, एल्टीट्यूड के कारण। तो एक ही लैटिट्यूड पर जो डिफरेंट प्लेसेस हैं ऑलमोस्ट सेम इंसुलेशन रिसीव करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें
थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिसीव कर रहा है, ये प्लेस भी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिसीव कर रहा है, ये प्लेस भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिसीव कर रहे हैं। तो इन प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होंगी उनको हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म्स। सो दीज आर द पैरेलल्स टू द इक्वेटर्स। ठीक, तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच ज्वाइन द places which of equal temperature, almost equal temperature, and these are the parallel to the equator. अब जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। अब हमारा जो ग्लोब है उसमें आप देखते हो कुछ लैंड एरिया, कुछ हमारा ओशनिक एरिया है ना, तो उसके कारण हमारी क्या हो जाती है, डिफरेंशियल हीटिंग हो जाती है। अब इस डिफरेंशियल हीटिंग के कारण जो हमारी आइसोथर्म्स हैं, सबसे पहले कि आइसोथर्म्स में डिस्टेंस कितना है, दो आइसोथर्म्स का डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, बताता है हमें कि टेम्परेचर वेरिएशन कितना है। जितना आइसोथर्म्स का डिस्टेंस, दो आइसोथर्म्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा, उतना ही इट मींस टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है। अब सपोज थर्ड हमारे आइसोथर्म्स ये जाते हैं, तो इट मींस इन दोनों के बीच का टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो क्या है, कम। ठीक, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जितना कम होगा दो आइसोथर्म्स के बीच में, दैट विल डिपिक्ट द हाई टेम्परेचर वेरिएशन। नेक्स्ट कि हमारा वाटर, एक ही लैटिट्यूड पर हमारा वाटर एरिया भी है और लैंड एरिया भी है, तो इट मींस वहां पर क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल हीटिंग हो जाएगी ओवर द लैंड एंड वाटर। ठीक, तो इट मींस कि लैंड क्या होती है, लैंड की क्या है कैरेक्टरिस्टिक, that get quickly hotter and cooler as compared to water bodies। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सेम लैटिट्यूड पर जब हमारे आइसोथर्म्स चल रही होती हैं, फ्लो कर रही होती हैं, तो वहां पर उसमें क्या आ जाते हैं, बैंड्स आ जाते हैं। बैंड्स मींस कि वो मुड़ जाती हैं थ्रू द इक्वेटर वर्ड्स और द पोल वर्ड्स। ठीक, ये डिपेंड करेगा हमारे सीजन वाइज। अभी हम इसमें आगे इसको देखेंगे कि कैसे होता है कि जैसे ही सेम लैटिट्यूड पर हमारे आइसोथर्म, सपोज ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का एरिया है और यहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन आ गया, यहाँ पर हमारा यूरेशिया आ गया। ठीक, तो यहाँ से एक आइसोथर्म निकल रही है, ये नीचे होगी, जैसे ओशन पर आएगी टेम्परेचर यहाँ डाउन हो जाएगा उसके एज कंपेयर टू लैंड, तो ये पोल वर्ड मूव कर जाएगी, फिर लैंड एरिया आएगा तो ये इक्वेटर वर्ड मूव कर जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से इसमें क्या आ जाती है, आइसोथर्म्स में बेंडिंग आती है टुवर्ड्स द पोल्स और इक्वेटर। अब हाई वैल्यू जो टेम्परेचर है वो हमें आइसोथर्म्स, जो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू के आइसोथर्म्स है वो हमें कौन से रीजन में मिलेगी, हाई वैल्यू आइसोथर्म्स का मतलब हाई टेम्परेचर है ना, तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ये आइसोथर्म्स कौन से रीजन में फ्लो करेंगे, यस, नियर द इक्वेटर यानी ट्रॉपिकल रीजन में, और पोलवर्स एरिया में हमें कौन सी मिलती हैं, लो वैल्यू आइसोथर्म्स मिलती हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोथर्म्स। Now we will discuss the horizontal distribution of temperature। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम दो सीजन लेके चलते हैं, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो दो सीजन लेके चलते हैं, 2 मंथ लेके चलते हैं, जनवरी एंड जुलाई। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ एंड जुलाई इज कंसीडर्ड एज द हॉटेस्ट मंथ। तो जो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करना है तो आपने इन दोनों मंथ्स का करना है, अगर आपसे सेपरेटली ना पूछा जाए, अगर पर्टिकुलर किसी मंथ का पूछा जाएगा तो आप उसी को डिस्क्राइब करें। ठीक, अब जनवरी में क्या सिचुएशन होती है, सपोज हमारा ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है,
ये हम मानकर चलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अब इनके अदर नेम्स मुझे बताओगे जरा। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, बताइए, इतना तो हम पढ़ चुके। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द yes equator, that is considered as the equator. And 23.5 degree north, particular मैंने 23.5 डिग्री लिए नॉर्थ और साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ is known as, आप +1 में हो गए, आपको इतना पता होना चाहिए क्या है, that is known as the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. And 23.5 degree south is Tropic of Capricorn. अब इनको हमने, इन दो को ही हमने अलग से निकाला और ट्रॉपिक्स का नाम दिया because sun is overhead on this latitude in the northern hemisphere and in the southern hemisphere. तो यहाँ पर जब सन बिल्कुल सीधा होता है इस लैटिट्यूड पर, तो यहाँ पर हम क्या फेस करते हैं, जब बिल्कुल सनरेज सीधी आएंगी तो इट मींस यहाँ क्या होंगे, समर। ठीक है, तो यहाँ पर जब समर है तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा, सन तो अब इस साइड आ गया, तो ये सबसे दूर हो गया ये वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या होंगे, विंटर। समझ आई इतनी बार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सनरेज सीधी हैं तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर, समर्स, और साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम क्या है, विंटर्स। और इसका रिवर्स हो जाएगा जब अर्थ रोटेट कर रही है और ये फेस आया अर्थ का सन के सामने, यहाँ क्या हो जाएंगे, समर। अब ये इसके बैकवर्ड एरिया हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, विंड। समझ आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अब मैंने कहा कि जब यहाँ पर विंटर है, इट मीन जून के मंथ में सन जो है वो कहाँ पर डायरेक्ट फेस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, एंड दिस रीजन एक्सपीरियंस विंटर व्हाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर that region will be experienced summers. ठीक है, तो इट मींस टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कहां पर ज्यादा होगा, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब अगर आप अपने बुक्स में मैप देखो जरा, मैप में आप एक चीज और आइडेंटिफाई करो कि इक्वेटर से ऊपर का एरिया जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां में लैंड एरिया, ओशन, तो रिलीफ में वेरिएशन, लैंड है कहीं ओशन है, वेरिएशन है ना। जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में देखो लैंड एरिया बहुत कम है, ओशनिक एरिया ज्यादा है ना। तो यहाँ पर आइसोथर्म की एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर लैंड वेरिएशन ज्यादा होने के कारण, सरफेस वेरिएशन ज्यादा होने के कारण आइसोथर्म्स में क्या आती है, बैंडिंग ज्यादा होगी। और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लैंड सरफेस कम है, ऑलमोस्ट वो ओशनिक एरिया है, तो इट मींस आइसोथर्म्स जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, लेस बैंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है साउदर्न हेमिस्फीयर में, लैंड मास पर जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो कौन कौन से यहाँ पर हमारे लैंड मासेस आते हैं, एक तो अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, अरे मेरे पास आना, वो ओ मेरे पास आ, तो मेरी मतलब स्पीकर यहाँ है ना दीदी यार, आप बिना, अरे मेरी क्लास चल रही है तो स्पीकर यहाँ है ना, सुनाई तो यहाँ से देगा, ऐसे थोड़ी सुनाई देगा, बड़ा क्लास ले रहा है, बड़ा एक एक पूरी पढ़ाई चल रही है, पता है
शुभम देखो सेब दिखा। म्यूट योर माइक। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रीजन है जो हमारे लैंड सरफेस जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इन तीनों ही रीजन में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ टेम्परेचर मिलेगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस की जो आइसोथर्म्स है वो इन तीन रीजन से निकलती है। बाकी जो है तो हमारा सारा क्या है, ओशनी एरिया है, ठीक। सो द आइसोथर्म ऑफ लो टेम्परेचर या लो वैल्यू विल बी फ्लो फ्रॉम दैट एरिया। हम यहाँ पर जो ग्रीनलैंड एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ग्रीनलैंड एरिया है, साइबेरिया है, दैट एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर इन द समर्स आल्सो। नाउ जुलाई में जब हम टेम्परेचर करते हैं, अब इसमें मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि यहाँ पर हमारे ओशंस ज्यादा हैं, लैंड कम है, वेरिएशन कम है, तो यहाँ पर आइसोथर्म्स की भी बैंडिंग कम होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है कि जैसे ही आइसोथर्म्स लैंड एरिया पर से निकलती है वो इक्वेटर पर मूव कर जाती है, जैसे ही ओशंस पर से आती है तो फिर से वो फॉरवर्ड मूव कर जाती है। नेक्स्ट कम टू द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज द हॉटेस्ट मंथ in the northern hemisphere। अब जुलाई मंथ में सनरेज कहाँ डायरेक्ट आएंगी, in the month of July where the sun rays fall directly। यही मैंने अभी इसीलिए डायग्राम ड्रॉ किया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नहीं समझ आया, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला था ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब यहाँ पर इसको आप एक सीधा सा आपका एक इसमें आप लगा सकते हो कि यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो कहाँ लाई करता है, बिलो द इक्वेटर और अबव द इक्वेटर। अबव द इक्वेटर। अब आपको ये तो पता होगा कि इंडिया में हमारे कौन से मंथ में हम समर्स फील करते हैं और कौन से मंथ में विंटर। कौन से मंथ में समर फील करते हैं, जनवरी और जुलाई। जुलाई। इट मीन्स यहाँ जुलाई जो है इस रीजन में, ये इंडिया का लोअर पोर्शन, इस रीजन में यहाँ जुलाई में हम समर फील कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी आ रही। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना दूर ड्रॉ किया, नहीं तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द इंडिया, है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या है, समर्स होती हैं जुलाई में। तो जुलाई में मंथ में सन रेज सीधी कहाँ आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द समर्स व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द विंटर्स। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका भी है, यूरोप और एशिया भी है सारा, जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है। फिर यहाँ पर अफ्रीका का भी कुछ पार्ट है, साउथ अमेरिका का भी कुछ पार्ट है। तो ये सारा जो है लैंड एरिया नियर द इक्वेटर, जो लैंड एरिया है, दैट विल रिसीव द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, ठीक है। तो जितना भी हमारा ये एरिया है, ये मीन्स कि जो हमारा अरेबियन कंट्रीज हैं, या फिर जो हमारी यूरेशियन, यूरोप और एशिया टोटल कॉन्टिनेंटल है ना, पूरा कॉन्टिनेंटल है, यानी पूरा लैंड मास है। तो वहां पर क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर वो रिसीव करेगा, बिकॉज वही फैक्टर आ गया कि लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी, तो लैंड ज्यादा टेम्परेचर रिसीव कर रही है, तो इसीलिए इस एरिया में हमारे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता रहता है, ठीक है। और लो टेम्परेचर यहाँ कहाँ मिलेगा हमें, हाई लैटिट्यूड्स पर,
हाई लैटिट्यूड्स, क्योंकि इसका भी हमने एक फैक्टर किया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि सनरेज इंक्लाइन होती जाएगी। तो यहाँ लो टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, हाई लैटिट्यूड्स पे। साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, वहां पर हमें क्या मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें नियर द इक्वेटर जो है वो क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर, और जैसे ही हम दूर जाएंगे ओशंस पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम। ठीक, तो यहाँ पर आइसोथर्म्स समर्स में क्या होंगी, पोलवर्ड्स, लैंड पर जैसे ही जाएंगी वो पोलवर्ड्स हो जाएंगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और ओशंस पर जाएंगी तो इक्वेटर वर्ड हो जाएगा। Reverse situation from the month of January. Clear है horizontal? Now vertical distribution. Vertical distribution हमने किया था कि vertical distribution क्या है? As we go far from the sea level, the temperature decreases. किया था ना? Vertical का मतलब हम लेते हैं altitude से, ऊंचाई से। ठीक, जैसे जैसे सपोज हमारा ये सी लेवल है, इसको हम 0 मानकर चलते हैं, और किसी भी अर्थ पर किसी भी प्लेस की हाइट जो है वो हम डिटरमिन करते हैं सी लेवल से, इससे कितने मीटर कोई प्लेस ऊंचा है। तो जैसे जैसे सी लेवल से हम हाइट पर जाएंगे हमारा क्या होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। अब ये डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर की रेट मैंने आपको बताई थी, हैव यू रिमेम्बर्ड? किस रेट से डिक्रीज होता है, कितने मीटर पर कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है? उल्टा बोल रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है ओवर द 165 मीटर। पर 165 मीटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो टेम्परेचर विल बी ड्रॉप डाउन 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दिस रेट ऑफ डिक्रीज इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। वन मार्क्स क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है ये, दैट रेट ऑफ डिक्रीज विल बी नोन एज अ नॉर्मल लैप्स रेट। एज वी गो पर 165 मीटर द टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। इसीलिए जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर जो है डाउन। अब हिमालयन जो रीजन है, हिमालयस में आप देखते हो कि आपने देखा एक ही लैटिट्यूड पर हिमालयन रीजन है, लेकिन हम हिमालय में जैसे जैसे हिल्स पर माउंटेन्स पर जाते हैं, शिमला में आपको टेम्परेचर और कम मिल जाएगा, फिर आप उससे ऊपर जो है कोको वैली वगैरह में जाओगे टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, लद्दाख जैसे में जाओगे, कारगिल में जाओगे, चाहे वो सेम लैटिट्यूड पर होंगे लेकिन आपको टेम्परेचर डाउन मिलता चला जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। Same latitude, same places experiences different temperature due to the variation in altitude. Clear? Now, one more concept is range temperature. Range of temperature. Range of temperature means the variation in the temperature during the coldest month and hottest month of the year. कि हमारा विंटर और समर में जो कोल्डेस्ट और वार्मेस्ट मंथ होता है, यानी कोल्डेस्ट मंथ हम कौन सा मान के चलते हैं, थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जनवरी एंड जुलाई। जनवरी और जुलाई में टेम्परेचर में वेरिएशन जो है, अब सपोज हम अपने एरिया की बात करें, अभी जुलाई में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कितना जा रहा था, 40 तक भी चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर रिसीव कर रहे थे। अभी जैसे ही जनवरी आएगा तो आप 2 स्वेटर्स भी पहनोगे, इनर्स भी पहनोगे, वार्मर्स भी पहनोगे, है ना, तो टेम्परेचर जो है दैट विल बी ड्रॉप डाउन नियर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है। Some places experience even 3 degree Celsius temperature in Gurdaspur of Punjab also. So theirs is suppose 10 degree Celsius. So
difference between these two is known as range of temperature, that is 30 डिग्री सेल्सियस। और ये वेरिएशन जो है रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें कहाँ ज्यादा मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, लैंड एरिया के प्रेजेंस होने के कारण ये वेरिएशन हमें नियर द इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर is more than 60 degrees Celsius over the northeastern part of Eurasian continent because it is totally a landmass। 60 डिग्री सेल्सियस तक का वेरिएशन मिल जाता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि -50 डिग्री तक का साइबेरिया में टेम्परेचर चला जाता है, जबकि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री तक, 50 डिग्री 60 डिग्री का डिफरेंसेस आ गया। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर हमें लार्ज वेरिएशन मिलता है नियर अबाउट 60 डिग्री, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमें 15 से 20 डिग्री तक का जो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड है उसमें हमें क्या मिलता है, स्मॉल वेरिएशन मिलता है, स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ द लास्ट कंसेप्ट, इन्वर्जन ऑफ कि अभी हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, उसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, एल्टीट्यूड्स के साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हो जाए तो, कि जैसे पे जाए नॉर्मल उससे रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉल विद altitude, but there are some special conditions under which ठीक है, अब ऐसे हो सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, पहले तो उसी पॉइंट पर हम आते हैं एटमॉस्फेयर, हमने टेरेस्ट्रियल और सोलर रेडिएशन किया था। अब हमने देखा था कि सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर लोअर लेयर है वो हीट अप होती है ड्यू टू द, ये हमारा लैंड है और ये हमारी अपर लेयर आ गई एटमॉस्फेयर। अब मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स है दैट इज मोस्टली हीटेड अप ड्यू टू द, किसके कारण होती है, टेरेस्ट्रियल